So what is this IPO? IPO is initial public offer. What is IPO? It is an initial public offer. As like when we issue our shares, when we issue our debentures, same manner we can even issue our public offers. IPO is a process through which an unlisted company can be listed on the stock exchange. क्या करेंगे हम लोग? The unlisted company can be listed in stock exchange, because while registering in stock exchange, you will have to issue your shares or debentures, especially shares, whether equity or preference. So when you will be issuing your shares, then only you will be eligible to register yourself in stock market. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल इंडस्ट्री है, हम लोग स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, तो हम कैसे रजिस्टर करें फिर, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, सो दैट वी विल बी इशूइंग द शेयर्स. So how we will be introducing ourselves in stock market? So we can go by this method, that is initial public offer. Okay, the object of IPO may be relating to expansion of existing activities. What we are going to do, we will be एक्सपांडिंग अवर एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस जो है उसको क्या करना है, अभी हमें एक्सपांड करना है. फॉर एग्जांपल, यू हैव स्टार्टअप अ स्मॉल बिजनेस एंड यू आर थिंकिंग ओके योर बिजनेस हैव टेकन अ पिकअप, लेकिन जब पिकअप ले रहा है तो उसके लिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए. ओके, बट फॉर दैट इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट बोरो, बिकॉज इफ यू विल बी बोरोइंग फ्रॉम बैंक, इफ यू विल बी टेकिंग लोन, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट, जो बर्डन हो जाएगा. सेकेंड इशू, शेयर्स इशू नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उतना टर्नओवर नहीं है, उतना नेटवर्थ नहीं है. So third step what you can do is you can go for IPO. Small IPO, small initial public offers आप लोग दे सकते हो, so that the investors will invest in your company and you can have growth. Activities क्या कर सकते हो आप लोग? Expand कर सकते हो, business को क्या कर सकते हो? You will take your business to a growth. Next, how to launch an IPO? How are you going to launch it? First, you will be hiring the underwriters. Who is going to write your IPOs? Underwriter. जैसे first shares है तो shares के लिए share certificate होता है, and that share certificate is controllable by the company as well as the bank. वो आपके memorandum of association में पहले से क्लियर होता है कि what will be the content that will be involved in the share certificate. So in the same manner आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अंडरराइटर ढूंढना पड़ेगा who will write your IPO. इनिशियल ऑफर कैसे करना है. सेकंड, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट. ठीक है, कितना पब्लिक ऑफर आप दोगे. फॉर एग्जांपल योर नेटवर्थ इज 1 करोड़, तो 1 करोड़ के नेटवर्थ के लिए आप लोग कितना इनिशियल ऑफर दोगे. देन दैट विल बी सबमिटेड टू सेबी. व्हाई सेबी? बिकॉज वी वांटेड टू रजिस्टर आवरसेल्फ इन स्टॉक मार्केट. Then they will get the approval from the government and finally you will be launching your IPO. So 1 crore का net worth है, so you can up to 50% you can go for initial public offer. That means 50 lakhs तक आप लोग क्या कर सकते हो, IPO issue कर सकते हो. क्यों 50 lakhs? क्योंकि अगर 50 lakhs रिटर्न नहीं कर पाए तो एटलीस्ट बाकी का बैकअप आपके पास 50% होगा. नेक्स्ट, यही प्रॉब्लम है. हुआ? Okay, now what are the other steps? First, again you will have to ट्रस्टेड एंड रिलायबल की मैनेजमेंट. सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ट्रस्टेड और रिलायबल मैनेजमेंट चाहिए, सो दैट दे विल बी ट्रस्टिंग. फॉर एग्जांपल, इफ यू एंड मी व्हेन वी आर बी एस्टैब्लिशिंग आवर बिजनेस और व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग आवर न्यू कंपनी, so the trust and the trustworthiness of the public as well as the board of directors are limited. Correct है? Why? Because they are not knowing us. Public हमें नहीं जानती. If I will say invest in Reliance, people will blindly invest. If I say invest in Tata company, again you will invest. If I say okay, you go and invest in Taj Hotel shares, obviously everyone is going to. But if I say anyone specifying your or my name, no one is going to invest over there, isn't it? So इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट, एक रिलायबल मैनेजमेंट, कि अगर हम लोग किसी को भी इनिशियली ऑफर दे रहे, इफ वी आर इन्वेस्टिंग, द मैनेजमेंट विल गिविंग अस रिटर्न बैक.
ठीक है, रिटर्न्स चाहिए ना हमें. व्हाई आर वी इन्वेस्टिंग? वी आर इन्वेस्टिंग टू गेट बैक अवर रिटर्न्स. नेक्स्ट, चूज योर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. वो अंदर फाइनेंशियल सिस्टम. अदर उसके बाद क्या करना है आपको? बैंकर्स को सेलेक्ट करना है. बैंकर्स क्यों? बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज डन बाय दी बैंकिंग. हमने देखा एक प्रॉपर डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं. We cannot transact with our saving account. We cannot transact with our current account. We cannot transact with our fixed accounts. ना ही हम लोग रिकरिंग से करेंगे. इसके लिए क्या होगा? एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, दैट इज डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, और उसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस करेंगे. Register with SEC, that is Security Exchange. Start your road show, that means your map. कहाँ से आपने start किया, कहाँ पर अभी आप हो. For example, you have started 3 years back. Then what is the profit of your 3 years? What is your balance sheet? What does your statement say? आपके creditors ज्यादा है या आपके debtors ज्यादा है? ठीक है, तो ये सब कुछ हमको क्या करना है? शो करना है जनरल पब्लिक को. Then only public will be initially offering. जैसे एग्जांपल बताती हूँ आपको आईपीओ का. आप प्लेटफॉर्म्स पे छोटे छोटे स्टॉल्स देखते हो, बुक स्टॉल, फूड स्टॉल है, छोटे छोटे स्टॉल्स होता है ना. दैट इशू इज आईपीओ. क्योंकि एक रेलवे स्टेशन हमें बनाना है तो उसका गवर्नमेंट का कॉस्ट जाता है. ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी है. तो उसके लिए क्या करते हैं? दे टेक द कोटेशन फॉर दैट स्टॉल्स. उससे क्या बेनिफिट है? वो कोटेशन जिसका अप्रूव्ड होगा, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी इन्वेस्टिंग. गवर्नमेंट को पैसा देगी, फ्री में नहीं है वो स्टॉल, उसका चार्ज है. एक स्टॉल का मिनिमम 2 to 3 लाख रुपीस उसका सिर्फ इनिशियल रजिस्ट्रेशन का. 50,000 रुपीस उसका ये है फॉर्म का. फिर उसके बाद में 2 to 3 लाख जाता है. फिर वो स्लोली वो इंक्रीज भी होता रहता है. तो गवर्नमेंट क्या है? वो इनिशियल ऑफर करती है, क्योंकि डायरेक्टली मांग नहीं सकते. गवर्नमेंट को पैसा कैसे जाता है? थ्रू योर टिकट्स. जब आप टिकट्स खरीदते हो वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, जब जाके वो प्लेटफॉर्म का रिकवर होता है. बट उसके अलावा भी तो खर्चे हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग स्टाफ वगैरह उन सबको देना होता है. तो वो एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से निकालेंगे? सो व्हाट दे डू, दे गो फॉर दिस इनिशियल ऑफर्स. वो छोटे छोटे स्टॉल्स ओपन करते हैं सो दैट अ लंप सम अमाउंट विल बी एक्वायर्ड. कहीं कहीं रेंटेड है. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग किसको देते हैं? जो वुमेन्स आइदर हैंडीकैप्स, मोस्टली दे प्रीफर टू दी हैंडीकैप्स. ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं और ज्यादा काम नहीं कर सकते तो उनको कोटेशन जल्दी मिलता है. तो हैंडीकैप के अगर बिहाफ में कोई और चला रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? दे विल पे द रेंट टू द गवर्नमेंट. तो वो रेंट जो रिकवर होता है उससे क्या होता है? अगेन द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर कवर्ड. फॉर दैट दे आर इशूइंग दिस इनिशियल पब्लिक ऑफर. है ना, क्योंकि बार बार हम लोग जनरल पब्लिक से पैसा नहीं मांगते. जैसे हम लोग टोल टैक्स पे करते हैं. टोल टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि वो जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के लिए जो अमाउंट गया है वो रिकवर हो. दो रिकवर होकर जमाना हो गया, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग टोल टैक्स पे करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं. सर्विस अभी भी यूज कर रहे हैं ना हम लोग. टोल टैक्स की रिकवरी हो गई होगी जितने में वो बना है, लेकिन फिर क्यों देते हैं? बीच में आया था ना इशू टोल टैक्स बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी आर यूजिंग दैट सर्विस. वो जितने वहां पर मेंबर्स है जो जॉब करते हैं, वी विल हैव टू पे देम. तो वो अपने जेब से तो कोई पे नहीं करेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वो टैक्सेस कवर करते हैं. गवर्नमेंट को जब प्लेटफॉर्म के लिए बार बार पैसों से नहीं मांग सकते. ये काउंटिंग तो नहीं कर सकते कितने कौन, मैं कितने बार जाती हूँ, आप कितने बार जाते हो, फिर एक साथ में उतना पैसा दे दो. दे सकते हम लोग गवर्नमेंट को? नहीं दे सकते. तो जितना भी वो टिकट्स होता है, टिकट्स का पैसा वो रिकवर होता है. नेक्स्ट, what are we going to do in IPO? See, it is a book building. It is an alternate method to making a public issue. क्या कर सकते हैं? It is an alternate method. Alternate method क्यों बोला गया? क्योंकि we can issue shares, we can issue debentures. अगर ये नहीं कर सकते तो आपके पास ये alternate है. आप क्या करोगे? IPO के लिए जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी शेयर इश्यू करता है. रेलवे का शेयर्स है, नेशनलाइज्ड बैंक के शेयर्स है, ठीक है, पोर्ट के शेयर्स है, लेकिन वो हम लोग नहीं खरीद सकते. क्यों? क्योंकि, और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते लोग उसमें ज्यादा? क्योंकि बहुत कम रिटर्न्स है, परचेसिंग भी बहुत कम है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ रिलायंस का शेयर आप 2500 में खरीद रहे हो, तो रेलवे का शेयर आपको हार्डली 1100 या 1500 के रेंज में होगा. तो जितने कम में आप शेयर खरीदोगे उतना क्या होगा? कम आपको मिलेगा रिटर्न. इससे वहां पर शेयर इश्यू ज्यादा नहीं होते. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास अल्टरनेट क्या है? IPO. वी कैन गो फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है,
It is accepted from the large buyers such as financial institution, corporation and high net worth individuals. किससे हम लोग कलेक्ट करेंगे? ये हम लोग एक लमसम अमाउंट होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कलेक्ट करोगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोगों को वो स्टॉल खरीदना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी पे टू द गवर्नमेंट, एक लमसम अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो वो लमसम अमाउंट किसके लिए यूज होगा? इवन दे कैन यूज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन दे कैन यूज फॉर द रीडेवलपमेंट। जो शेड्स वगैरह बनाते हैं स्टेशन पे या स्टेयर्स कंस्ट्रक्शन है, तो वो लमसम अमाउंट से वो लोग क्या करते हैं, उसका एक्सटेंशन करते हैं। जैसे हर एक स्टेशन अभी एक्सटेंड होता जा रहा है, पहले 9 कंपार्टमेंट, देन 12 कंपार्टमेंट, अभी 15 कंपार्टमेंट, अभी 21 भी आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम लोग स्लोली स्लोली एक्सटेंड कर रहे हैं कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, सिंपल है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं। पॉपुलेशन कम नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट, अगेन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर आईपीओ? फर्स्ट, इशू अ कंपनी आईपीओ प्रोसेस। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी क्या करेगा, कंपनी विल बी अपॉइंटिंग अ लीड मैनेजर टू बुक। आप और मैं नहीं कर सकते। अगर स्टॉल आपको भी खरीदना है तो भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, मुझे भी खरीदना है तब भी डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते। कौन होगा? देयर विल बी वन इंटरमीडियरी। ठीक है, गवर्नमेंट का स्टॉल ले रहे हो तो गवर्नमेंट का इंटरमीडियरी होगा। दे विल बी इशूइंग न्यूज़पेपर नोटिस, टेंडर, दे विल हैव टू डू इट। विदाउट टेंडर दे कैन नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, लाइसेंस कैन बी कैंसल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि माल प्रैक्टिस हुआ। किसी को डायरेक्ट अगर आपने अपॉइंट किया या किसी को डायरेक्ट टेंडर दिया तो चांसेस क्या होते हैं कि इसने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे किया होगा। दो होता वही है, लेकिन वो हम लोग पब्लिकली करेंगे। ठीक है, तो वो टेंडर हम लोग देंगे। सेकंड, आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे फिर भी आपको क्या होगा, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। यू विल हैव टू गो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वहां जाकर आप लोग क्या करोगे, सबमिट करोगे। यू विल बी सेलेक्टिंग वन बैंकर, you will be selecting one manager who will be following up. आप फॉलो नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट में आपका नाम रजिस्टर्ड होगा, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, फिर भी आप लोग डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। कौन डील करेगा? ब्रोकर्स। आप लोग डील नहीं कर सकते। तो इन द सेम मैनर आईपीओ में भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डील नहीं करेंगे। देयर विल बी वन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, सेकंड इज योर सेबी प्रोस्पेक्ट रिव्यू। सेबी क्या करेगा, यू सेबी विल बी गेटिंग योर prospectus, whatever you will be offering, that prospectus will have to be submitted to SEBI। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो इसे एक कॉपी कहाँ जाएगी इसकी, SEBI के पास। Revert draft of our prospects back to the lead manager। फिर SEBI क्या करेगा, SEBI will read all your prospectus that what you have offered। इनिशियल ऑफर में आपने कितना ले रहे हो और कितना रिटर्न दे रहे हो। ठीक है, so all those procedure will be read by the SEBI, approved by the SEBI, and then only you can go for IPOs। अपने मन का नहीं कर सकते हो कि मेरे को 1 करोड़ का बिजनेस है तो मैं 1 करोड़ आईपीओ दे सकता हूँ, नहीं दे सकते आप। अगर आपने 50% के लिए अप्लाई किया है, अगर SEBI अप्रूव करती है तो आप 50% का आईपीओ दे सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं दे सकते। ठीक है, so everything will be approved by the SEBI। ये क्या बाकी के स्लाइड्स कम है।